अगर आप देखोगे खोल के, अगर 80-90% स्टार्टअप जो हमारे हैं, वो कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ। हम टेक नहीं बना पा रहे हैं। हम नहीं बना रहे माइक्रोसॉफ्ट, हम नहीं बना रहे इंटेल। भारत एक ऐसा देश है जो इतना डाइवर्सिफाइड है कि आप इंडिया सॉल्व करते हो तो यू कैन सॉल्व यूएस, यूके और नाइजीरिया एज वेल। थर्ड की अगर सिक्योरिटी सबसे प्राइमरी स्पेस है, तो क्यों ना पुलिस से ही काम करें। विद इन अ मंथ वी एक्चुअली सॉल्व अराउंड 300 क्राइम्स, मतलब 300 क्रिमिनल पकड़े गए। We are also growing globally, and now we have closed couple of deals in Middle East. We are also closing in London. We are opening our office in London as well. किसी भी इंडिया के वर्ल्ड के किसी भी एआई को बोलोगे ना, तो 90% एक्यूरेसी सबकी है, पर लड़ाई जो है ना 90 से 100 के बीच की है। वो 95 क्रॉस करते करते आधी आपके पास 100 कंपनी है तो फिर 5 बचती है। ये है लड़ाई एआई की। मेरा एक साइड रिसर्चर का है, वो उसको बड़ा पसंद है कि यार कुछ नई तूफानी चीज को बनाओ एआई में बैठ के। बट एक दूसरा पार्ट है कि आपके पीछे 70-80 लोगों की कंपनी है जिनको सैलरी भी देना है, तो यू हैव टू गेट अ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इट। कुछ ऐसा बनाना है which actually solve a problem where actually your end user, a constable sitting in let's say Bhagalpur in Bihar should also say कि यार ये टेक तो बड़ा शानदार है। CIO of Starbucks should also say कि भाई मस्ट टेक बना है। So first of all, welcome guys to another edition of the Water Cooler Conversations, the Startup Founders podcast of the Builders Club. We have Atul Rai with us, who's the co-founder and CEO of StackU Technologies. StackU Technologies is a Gurgaon-based artificial intelligence startup. They basically strive to utilize technology in solving real-world problems. The company was founded in 2015. And they use state-of-the-art image recognition, language-independent proprietary speaker identification, and text processing, including sentiment analysis, text classification, and summarization. StackU has been doing a lot of interesting stuff. They were also handpicked by the British High Commission as the best AI startup in the country. And also, they basically were one of those guys who were in the IBM's Global Entrepreneur Program as well. StackU has raised investments from Indian Angel Network, and they've been doing a lot of interesting work with a lot of companies. Very recently, they also struck up a deal with WeWork for the new technology Jarvis, and we'll probably delve a little bit deeper into that as well. Atul himself has done masters in artificial intelligence from University of Manchester, and has about 7.5 years of experience in the business development and entrepreneurship domain, and has a hands-on experience in computers and machine learning as well. So AI and ML कूट के भरा हुआ है अतुल की के DNA में. He was also a research associate at the University of Stuttgart and a research consultant at University of Hertfordshire. So an out-and-out academic, a hardcore techie, and AI and ML is something which is in his genes. So welcome Atul, welcome to the Builders Club. Hey, hi Sohail, thank you for such a broad introduction. मतलब आपने सारी चीजें कवर करी है. So of course AI was something which I started in 2006. तो उस टाइम AI is more about कि understand AI as a robot. लोग AI को robot से समझते थे कि ऐसा robot बना रहे हो कुछ. Yeah. So of course, I mean, from there to till today, the things have changed, and a lot of new innovations being brought by different kind of researchers and all. So it's really good to build those things. So yeah, I will discuss that. But thank you very much for inviting us for this very, I can say, a very great chat room where we can discuss a lot. And this is my first, to be honest, where I'm coming for such a new age media, I would say, for discussing this thing. Yeah. Yes, new age क्या आजकल तो यही मीडिया है. There is no other media as such. तो यहीं से पिक होकर के ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स में जाता है. So you really can't say much about it. But Atul, I would love to know a little bit about your initial journey. How did you start? How did this whole, I mean, what were the initial days of your professional journey, and how did this whole idea of StackU come into picture for you?
So basically, this all started when I was doing my BTech, and also I was very much interested in AI in a very early stage of my whole, the BTech journey. So in 2006, when I was doing my BTech, I started my computer science journey, and before that, I never actually seen computers in real time. How to use computers, right? So 2006 was something when in my BTech first year, I got a first interaction with the computer. So from there it got started. When I was in second year, I started taking interest in image processing. Image processing का मतलब होता है given an image, क्या सॉफ्टवेयर कुछ अपने आप से आइडेंटिफाई कर सकता है क्या? Let's say there's a basically a cat, there's a dog in an image. How can that be detected without human interference? तो वो सब चीजें चलती रही. 2010 में I written my first research paper, which was more about creating something, even a tech which basically can help a physically disabled people. So let's say आप computer के सामने बैठे, you don't have a hand, right? And that point of time, computers were very famous, right? So how will use it if you don't have a hand, right? So that is where we created this research where you can move the cursor while moving your head and blink your eye to click the any of the whatever the icons you have. Interesting. So that was my first research paper, got published in IPTA in Paris. उसके बाद फिर I applied for couple of grants. I thought कि ये कुछ बड़ा बन सकता है, it can help lot of disabled people, but कुछ नहीं हुआ. तो कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, बाहर से पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा और सीखते हैं. So there of course I went for my masters from Manchester. वहाँ फिर ग्राफीन लैब के साथ काम किया, which won Nobel Prize for 2010. And thereafter I written around 12 research papers in AI. I worked with University of Szeged, like you named. There I worked. This is in Hungary, and it was very a known research place for AI researchers in machine learning. Eastern Europe में बड़ा famous जगह है वो. So I worked there with Professor Jolton Kato, one of a very known professor again in computer vision and machine learning. फिर वहाँ से फिर 2015 में ऐसा लगा यार 13-14 में कि अब इंडिया वापस चलते हैं, बहुत यूरोप यूके हो गया, let's build something, because India was a very developing market and startup all things were coming at that time. If you remember 2015, right? Flipkart बहुत super famous हो चुका था और Myntra was like a name. But तभी एक था कि I don't know how AI will work in this market, because there were time when initial adaptation of this whole startup and just digitalization were happening. E-commerce is just a digitalization, right? So and AI is like one step ahead कि आप वो digitalization हो गया, now you're using that data to do a lot of predictions, lot of classifications and all. But decided to come back, and then of course met with Anurag and Pankaj, two other founders. They are genius in their respective domain. Anurag worked with Qualcomm, MediaTek, so he has a lot of experience of kernel programming, which means the native programming in the mobile phones and all. Then got Pankaj. Pankaj was having experience in a lot of, you can say, the back-end technologies where you build all those models and everything. So in that way, we three founders complement each other. I am from research, they two are from different engineering background. We started StackU. तो StackU ऐसे बना, तो वो जो एक पैशन था, वो जो academic passion था, that got converted to a company, and of course we started solving first image search. As I said कि मतलब आप image search पे ज़्यादा interest आपका है, क्योंकि that is the largest database. Given that example, मैं बड़ा simple example देता हूँ. तो image और video data के साथ problem ये है कि जब तक you don't have a human seeing it, you can't define it. Let's say एक image में दो लोग या एक video में दो लोग लड़ाई कर रहे हैं. अब क्या कंप्यूटर आपको या कैमरा अपने आप बता पाएगा कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है? It's not there, right? And we are talking about advanced AI and all. So this is something which interests. Pixels should define itself. And that is where we thought, let's use this data and let's create a system which can basically define itself using AI. Because that, for example, मैं एक बड़ी simple सा example लेता हूँ. हम apparel देखते हैं. Let's say शाहरुख खान ने एक बड़ी सही जैकेट पहनी किसी मूवी में, और मुझे वही कपड़ा खरीदना है. तो आप लेट्स से वो शर्ट का कुछ भी टाइप करोगे, आपका इंटरप्रिटेशन और डेटा का कुछ अलग होगा. इमेज का हर इंसान अपने हिसाब से डिफाइन करता है. आपने टेक्स्ट सर्च किया फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, कहीं पे, और वो मिला नहीं आपको. क्यों? क्योंकि वो एक इमेज का बहुत डेफिनेशन हो सकता है, और जिसने टैग किया होगा वो अलग है. तो दैट इज वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी. वी स्टार्टेड द इमेज सर्च. इफ यू आर लाइकिंग समथिंग, क्लिक अ फोटो एंड इट विल सर्च अक्रॉस ऑल द ई-कॉमर्स व्हिच यू हैव. तो वो चीज़ चली. 2015 में हमने स्टार्ट किया, 17-18 तक काफ़ी ठीक चला. बट 18 के बाद देन कंसोलिडेशन ऑफ द ई-कॉमर्स स्टार्टेड हैपनिंग. अब बहुत सारे बड़े, मिंत्रा चला गया, जिबोंग चला गया, पेटीएम मॉल वाज जस्ट लाइक अपने एंड स्टेज पे था, और यू कैन से दे वर लाइक डूइंग समथिंग डिफरेंट. फ्लिपकार्ट गॉट एक्वायर्ड. तो अब लगा यार मार्केट में ई-कॉमर्स जो है ना बड़ा कम हो गया है. एंड देन ऑफ कोर्स वी आर इन B2B स्पेस, तो अब क्या करें?
तो हुआ ये कि while doing all the stuff कि शाहरुख खान को आइडेंटिफाई करके उसका शर्ट सर्च करना was something we were doing, right? तो हम कहीं ना कहीं उस टाइम फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे थे, हम अपैरल सर्च कर रहे थे, which is more like a use in appearance analysis. Appearance analysis मतलब किसी इंसान को अलग अलग कैमरे में सर्च करना है तो इजिली आप सर्च कर। तो decided to pivot to this video analytics. तो टेक तो बिल्ड था ऑलरेडी, बिकॉज एल्गोरिथमिक तो आपने एल्गोरिथम बना रखा है। तो देयर वी थॉट लेट्स सॉल्व सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो पेज 3 से थोड़ा अलग हो, फैशन वैशन से निकल के थोड़ा एक्चुअली जो दुनिया जहां से जिसका मतलब हो। तो उसी टाइम जो सबसे पहले जो समझ आया कि लेट्स टारगेट सीसीटीवी कैमरास, बिकॉज नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डेटा वी हैव मोर नंबर ऑफ कैमरास देन द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अर्थ। समझ रहे हो ये कितना डेटा प्रोडक्शन हो रहा है, उसका कोई है नहीं बताने वाला कि क्या हो रहा है इसमें। So that is where we thought let's do CCTV and we decided to let's do first with the retail and all those manufacturing, हम उनके साथ काम करें। पर यार एक बात बताओ, आपका रिटेल इंडस्ट्री में आके बोलूंगा यार मैं आपका कैमरा एनालिसिस करूंगा तो आप भगा दोगे, भाग जाओ यार तुम्हें नहीं जानता, पता नहीं तुम क्या करने वाले हो, राइट? तो वो जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, क्योंकि कैमरा इज अ वेरी पर्सनल थिंग, यू पुट इट फॉर सिक्योरिटी, यू डोंट पुट इट फॉर रिटेल एनालिसिस और समथिंग। और कोई मैं आऊंगा रिटेल एनालिसिस क्या है, तो आप व्हेन यू कम टू दिस तो यू डिसाइडेड कि यार सही बात है, क्रेडिबिलिटी बिना क्रेडिबिलिटी के कोई आपके साथ करेगा नहीं, एंड क्रेडिबिलिटी कैमरा व्हेन वी पुट फॉर द सिक्योरिटी। द फर्स्ट थिंग वी टारगेट व्हेन वी पुट एनी सीसीटीवी कैमरा, we decide to use it for security. Security was a primary space, so we thought कि अगर security ऐसा primary space है तो क्यों ना पुलिस से ही काम करें पहले पुलिस, क्योंकि पुलिस के साथ काम करोगे तो पुलिस एक्सेप्ट भी करेगी क्योंकि हाँ उनके पास टेक नहीं है। दूसरा, you will also get an advantage to get a credibility in the market. People will have a trust on you. So we started one of the toughest state, Punjab. Why I say Punjab? Because Punjab में facial recognition करना, like you have a beard, you have pagdi, you might have a lot of facial features which can interrupt in facial recognition, right? तो वी स्टार्टेड विद पंजाब। तो पंजाब के पास भी गए तो उन्होंने कहा देखो यार तुम जो बोल रहे हो है तो सारी अच्छी चीज, सुना हमने भी है, देखा हमने भी हॉलीवुड मूवीज में, पर ये चलेगा क्या? हमने कहा सर एक काम करते हैं, पायलट कर लेते हैं, मतलब आप इसको यूज करिए और अगर आपको ठीक लगेगा देन विल गो फर्दर। तो ऑफ कोर्स दे एक्सेप्टेड इट एंड विद इन अ मंथ वी एक्चुअली सॉल्व अराउंड 300 क्राइम्स, मतलब 300 क्रिमिनल पकड़े गए। तो उन्होंने कहा यार ये तो चाहिए होगा। So from there we got our first deal from Punjab Police. This I'm talking about 2018 when we pivoted, we were trying कि यार कहीं से तो जिंदा रहें, कहीं खत्म ना हो जाए कंपनी। और ये सोचो ये 15 से स्टार्ट होने वाली कंपनी 18 में स्ट्रगल करने लगती है, तो इट वाज अ टफ पार्ट। तो हमने खैर 18 में वो डील क्रैक करी। अब पंजाब पुलिस में इतना सक्सेस मिला कि देन यूपी अडॉप्टेड, बिहार अडॉप्टेड, उत्तराखंड अडॉप्टेड, हरियाणा अडॉप्टेड, छत्तीसगढ़ अडॉप्टेड, तेलंगाना अडॉप्टेड। तो ये अब फ्री फ्लो हो गया। अब ये हो गया कि यार तो सिक्योरिटी में अगर किसी को करना है तो स्टैच्यू शुड बी वन ऑफ द कंपनी शुड बी टारगेटेड। सो ऑल दिस इज मोर लाइक वर्ड ऑफ माउथ, सो एवरी पुलिस वाज रिकमेंडिंग द अदर वन एंड ऑल, एंड समहाउ वी आर एक्चुअली आई मीन अब जहाँ पे क्रिमिनल ऐसा है कि मतलब घूम रहा है क्राइम करके एक कैमरे से दूसरे कैमरे पे, और तो बहुत इजी टारगेट हो गया, पकड़ो इसको, और पकड़ में भी आ जाते थे। तो then we created a credibility and then we decided कि अब वापस चलते हैं, अब रिटेल मैन्युफैक्चरिंग में बताते हैं कि हम ऐसे करते हैं। और of course when we went there we got a good traction and then retail was the first market we started with where we are doing now footfall analysis, कितने लोग like तो retail was fighting with e-commerce, I mean we all know right। रिटेल के पास कोई डेटा नहीं है, रिटेल जस्ट है डेटा कि भाई मेरे कितने आज मेरे कोई भी आज मैंने कितना सामान बेचा, दिस इज व्हाट आई हैव राइट, बट आई डोंट नो आई मीन हाउ मेनी पीपल एक्चुअली केम टू चेक दैट थिंग एंड व्हाट प्रोडक्ट दे चेक। सो दिस इज समथिंग वेयर द कैमरा कैन बी यूटिलाइज्ड व्हिच इज इनसाइड द रिटेल। तो हमने कहा कि हम ये एनालिसिस आपको करके देंगे एंड देन अगेन वी बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज वी वर बिल्डिंग दैट टेक फॉर द लास्ट 7-8 years। तो रिटेल क्लोज किया, फुटफॉल एनालिसिस, क्यू एनालिसिस, प्लानोग्राम एनालिसिस विच मीन्स कि किस सीट पे लोग ज्यादा बैठते हैं, किस प्रोडक्ट को ज्यादा चेक करते हैं विदाउट इंट्रूसिव वे, मतलब आप किसी को पहचानते नहीं हो, बस यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दैट हीट मैप ऑफ द पीपल गोइंग फॉर डिफरेंट पार्ट्स। So this is something which became famous and then retail industry is accepted in a very great way. The second, of course, the manufacturing part which we are doing. Manufacturing में मतलब security and safety are very important. मतलब मैंने जैकेट पहना है कि नहीं, सेफ्टी जैकेट होता है, हेलमेट होता है, and then all those stuff, right? So in that way, we broadly made this whole video analytics useful for retail, manufacturing, and police and law enforcement or smart cities were already doing that. तो ये एक बड़ा हमारे लिए पावरफुल यूज केस बना एंड देन बिकॉज यू सॉल्व सो मेनी थिंग्स, यू वर्क सो ऑफ कोर्स आप गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हो, पुलिस के साथ नहीं कर सकते। जैसे पुलिस के साथ नहीं कर सकते फ्री में ऐसे कुछ बहकावे में, क्योंकि देयर यू आर सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। मतलब क्रिमिनल है, क्राइम करके भागा, अगले 1 घंटे में उसको पकड़ना है,
डॉज नहीं कर सकते कि अरे सर अभी तो सिस्टम में लगाया है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपने अपना सिस्टम खरीदा है एंड यू आर सेलिंग टू इंडियन पुलिस। तो उस जगह में हमने इतना सीरियसली प्रोडक्ट बिल्ड किया, हमें भी डर लगता था यार, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं पुलिस में किसी को नहीं जानता था, तो ऐसे था कि यार जो भी बनाना है ना, मतलब जो भी बोलना है वो करना है। तो इस चक्कर में प्रोडक्ट बहुत मतलब हमने ढंग से बना लिया। आई एम गिवन दैट वी ऑल वेर टेकी, आई मीन वी ऑल आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, we also partnered with IIT Delhi, we also brought a lot of researchers and other PhDs who are the part, तो टेक बिल्ड हो गया। फिर वी आर स्टिल डूइंग गुड इन दैट वे, वी आर क्लोजिंग एवरी डोमेन। तो ऐसा मतलब चीजें बढ़ती गई एंड थिंग्स आर गोइंग रियली गुड इन दैट वे। Government is growing by its own word of mouth. We don't have any marketing and sales team, to be very honest, in that direction. Retail and manufacturing we are solving, and we have solved some of the, I can say, the market leader in those domains. Retail में market leaders के साथ काम कर रहे हैं हम, infra में we are working with market leaders. In the same way we are working with let's say airports also we started. So in that way now this is something which India actually was looking for. इंडिया का ऐसा मार्केट है ना, इंडिया हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप वगैरह की, लेकिन हम बहुत कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट है। अगर आप देखोगे खोल के, अगर 80-90% स्टार्टअप जो हमारे हैं वो कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ, हम टेक नहीं बना पा रहे हैं, या हमारे टेक को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। हम नहीं बना रहे माइक्रोसॉफ्ट, हम नहीं बना रहे इंटेल, राइट। तो वो जो हम बिल्ड कर रहे थे ना, तो बड़ा एक स्केप्टिज्म था, अरे इंडियन कंपनी कैसे बना सकती है, वो तो यार यूएस में वो फलाने कंपनी बना के बैठी है, आप कैसे उसको बीट कर पाओगे। दिस स्केप्टिज्म वाज एवरीवेयर, इन्वेस्टर्स वर नॉट लाइक वांट टू टच अस। तो खैर, I mean, you proven yourself, you started generating your own revenue, you are profitable, operationally profitable, and EBITDA positive as well. So though we raised funding recently in pre-series A in April, but the idea was to grow in a sustainable manner, and this is something actually now you can see a lot of good startups are doing. Joho is one of the example which everyone follow, and I respect that company. So they are building tech, HR tech और all those stuff. They have a lot of things, right? We use that tech. ऐसी बहुत सारी कंपनीज ने ये चीज प्रूव करी कि अगर आप यार देखो, फंडिंग तो चलो एक हो ही गया आजकल, पोस्टर बॉयज आर फ्रॉम द फंडिंग साइड, बट स्टार्टअप्स आर फेमस फॉर देयर फंडिंग, नॉट फॉर द वर्क दे आर डूइंग। तो दिस इज समथिंग वी वर लाइक वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डे, यार ऐसा नहीं है फंडिंग आई, लोगों को हायर किया, फिर फायर किया, इस तरह से ग्रो नहीं होना है। कुछ ऐसा बनाना है which actually solve a problem where actually your end user, a constable sitting in let's say Bhagalpur in Bihar, should also say कि यार ये टेक तो बड़ा शानदार है, and person sitting in GMR airport in Terminal 2 in Delhi should also say कि भाई सही है, like CIO of Starbucks should also say कि भाई मस्ट टेक बना है। तो ऐसे डाइवर्सिफाइड को सॉल्व करो, फिर यार इंडिया को सॉल्व करोगे, यू आर हैविंग वर्ल्ड आउटसाइड देयर, राइट। आई मीन दुनिया, भारत एक ऐसा देश है जितना डाइवर्सिफाइड है कि आप इंडिया सॉल्व करते हो तो यू कैन सॉल्व यूएस, यूके और नाइजीरिया एज वेल। सो with that thought process, now we are also growing globally, and now we have closed couple of deals in Middle East. We are also closing in London. We are opening our office in London as well. तो यार चीजें ठीक जा रही हैं अभी तक तो, given that कि we are building Indian tech company and growing in a right manner, which we should actually, I mean, grow. नहीं यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार अतुल। आप लोगों ने बेसिकली, you people started off with retail, then you basically went into video analytics. वीडियो एनालिटिक्स में भी आप लोग स्पेशलाइजेशन फिर सीसीटीवी फुटेज के ऊपर ही है, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि वहां से दैट इज योर मेन आई, जो आंख है आपकी। So हाँ, because see there one of the problem you can see, or you can say one of the things which is happening in the AI is कि यार टेक तो बहुत बिल्ड हो रहा है, जीपीटी आ गया फॉर एग्जांपल, जीपीटी चैट आप फॉलो कर रहे होगे, कुछ भी टाइप करो रिजल्ट आते हैं। कॉमर्शलाइज करना, बिकॉज एक तो होता है इनोवेशन, एज ए रिसर्चर आई लव टू डू दिस। मेरा एक साइड रिसर्चर का है, वो उसको बड़ा पसंद है कि यार कुछ नई तूफानी चीज को बनाओ एआई में बैठ के। बट एक दूसरा पार्ट है कि आपके पीछे 70-80 लोगों की कंपनी है जिनको सैलरी भी देना, तो यू हैव टू गेट अ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इट। कैमरा एक ऐसी चीज है जिसका कोई ऐसा कुछ बना ही नहीं था, और हमें वो चीज समझ में नहीं है। ऐसा नहीं कि वी आर लिमिटेड टू द कैमरा स्ट्रीम ओनली, वी कैन डू बॉडी कैम, वी कैन डू ड्रोन कैम, वी कैन डू सैटेलाइट इमेजिंग also. So we are doing that, but in a small way, because that is not a huge, I mean, you can say the market. That is a market, if you do, that is good, but today it is not that big. तो वो पार्ट हमने एक्चुअली वी स्टार्टेड विद सीसीटीवी कैमरास, एंड सीसीटीवी कैमरास ऐसे कि आपके अपने घर में भी लगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी लगा होगा, रिटेल में भी लगा होगा, ऑफिस में भी लगा होगा, तो एवरीवन इज हैविंग दैट, एंड एक्चुअली दैट इज केप्ट एज अ डम डिवाइस डूइंग नथिंग। कुछ हो जाएगा तो आप खोल के देखोगे कि भाई क्या हुआ था, राइट। We want to change that perception, we want to change that
actually the narrative which is being set up with the cameras कि कैमरा में बहुत कुछ कर लोगे तो tier 3 का एम्प्लॉय रख लोगे. We don't want to change that. तो कैमरा existing camera has to be smarter. मतलब हम ये नहीं करें नया कैमरा, जो भी कैमरा आपका लगा है we just add a layer of Jarvis which is our product's name and make it smarter and analyze anything. You can ask भाई आज झाड़ू कितने बजे लगा था मेरे घर में and camera will tell you कि आज झाड़ू आपके घर में 8 से 10 लगा था या आपके बिल्डिंग में 8 से 10 लगा था. So this is one of the narratives, and you can also ask, भाई जब भी fight हो तो मुझे alert दे देना. So this is powerful, right? I mean, you are putting a third eye which is acting as a human and giving you all the things for which you actually installed your cameras. तो वो एक चीज था. तो आपको CCTV is something where of course the commercialization or you can say or making revenue for the company is also important because you will grow only if you'll make more money. Otherwise यार fancy चीज तो बहुत कुछ कर सकते हो. तो पैसे ही नहीं कमा पा रहे हो तो फिर लोग कहेंगे ठीक है बहुत अच्छा लगा बट रेवेन्यू नहीं है तो हम नहीं कर सकते. राइट? नहीं ये एब्सोल्युटली सही है. देखो पॉइंट ये है ना कि and I believe that so there is a solution for every problem which is out there. It's just that whether that problem itself, number one, whether the problem is big enough or not, and number two, whether the solution is mainstream or not. क्योंकि अगर आप कॉलेजेस में चले जाओ उनके तो यार रिसर्च लैब्स में देर आर मतलब क्या बड़ी से बड़ी चीज बन करके रखी हुई है. But it's just that those solutions are not commercially viable. Or that solution itself is not, that problem itself is not that mainstream. क्यों मतलब बना नहीं है. मैं बता रहा हूँ 10 साल पहले से ये जो वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम्स तो यार 2001-2002 से बने हुए हैं, लेकिन 2020 में जाकर क्या है क्योंकि वो मार्केट की टाइमिंग उस तरीके से होगी. राइट? सेकंड ऑफ कोर्स द होल आइडिया ऑफ मेकिंग दिस टेक वायबल कमर्शियली, ऑफ कोर्स आई थिंक मतलब जो आपका मॉडल है बिल्कुल सही है कि B2B इज द वे टू गो. इसमें B2C के लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं. I think the problem itself is big for probably a corporate and that also enterprise level. बड़ी कंपनीज होंगी, गिन चुन के होंगी और उनके लिए जब आप सॉल्यूशन दोगे तो that itself will be big enough for solving a lot of their issues. इसमें मैं 2-3 चीजों के ऊपर और टच अपॉन करना चाहता हूँ सर. एक तो ये है कि मतलब ठीक है मैं सबको ही मतलब मेरे लिए तो सारे एक्सपीरियंस वाइज सारे ही सर हो जाते हैं. सो मैं ये समझना चाहता हूँ सिर्फ कि जो आपका टेक है ठीक है तो एक तो हो गया यू पीपल क्रिएटेड एन इमेज रिकॉग्निशन का लेयर की चलो ये जो बन रहा है इसको हम आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग इज बीइंग आइडेंटिफाइड. उसके लिए आपको डेटा पॉइंट्स की जरूरत पड़ी होगी. राइट? सो दोस डेटा पॉइंट्स व्हिच यू गेट, तो ये जो पूल है ऑफ डेटा, दिस पूल वाज समथिंग व्हिच यू पीपल बिल्ड फ्रॉम दिस थिंग या फिर आपने मतलब वो डेटा का पूल आपको मिला कहाँ से जो इनिशियल डेटा पूल है? बिकॉज ऑफ कोर्स एज मोर एंड मोर डेटा कंटिन्यूज एडिंग इन the machine will become smarter, but of course there is an initial pool set which would be required for this. तो बेसिकली हमने 2015 में जब कंपनी स्टार्ट करी ना, 2 चीज हमने और करी. हमने तब से और आज तक भी हमारी अपनी एक क्यूरेशन टीम है, डेटा क्यूरेशन टीम. डेटा क्यूरेशन टीम में कुछ काम नहीं होता और डेटा को टैग करती है. डेटा क्या है? डेटा तो यार मतलब ठीक है अभी तो प्रोटेक्शन लॉज एंड ऑल आ रहे हैं, इंटरनेट पे यूट्यूब पे इन सब कितनी वीडियोस पड़ी हुई है यार. मुझे 2 लोग बात करते हुए का डेटा चाहिए एग्जांपल तो है, उसको बस टैग करना कि हाँ इसमें 2 लोग बात कर रहे हैं या इसमें 2 लोग फाइट कर रहे हैं. एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं यूट्यूब पे वीडियोस मारा वायलेंस सर्च, बहुत सारी वीडियोस आ गए, आपने टैग कर दिया, टैग करके आपने डेटा डाउनलोड किया. टैग करना आपको कई सारे वायलेंस में होगा कि वही बम फट रहा है, वही वायलेंस में टैग है, बट इसको आपको रिमूव करना है. तो यू नीड अ क्यूरेशन टीम. तो वी हैव इंटरनल क्यूरेशन टीम हु टैग दोस डेटा एंड ट्रेन इट. ये तो एक पार्ट हो गया. अब आपने ये डेटा टैग किया लेट्स से ओपन सोर्स डेटा पे, तो ऑफ कोर्स जो मेरा कस्टमर है उसका डेटा थोड़ा अलग हो. तो यार उसमें हम ये कहते हैं कि हम आपके साथ जब स्टार्ट करेंगे तो हम आपके पास 95% एक्यूरेसी से आएंगे. हम 100% या 99 नहीं बोलेंगे. ओवर द टाइम गिवन योर डेटा हम एक वो रखते हैं कि भाई इतने टाइम पे हम ये अचीव कर लेंगे, इतने टाइम पे जो क्यारे आप बोलते हो, और उसके बाद फिर आप हमें जज करते रहना. तो ये चीज हम पूरा क्लियर कमिटमेंट से जाते हैं. और एक्चुअली एआई वर्क भी ऐसे ही करती है. एआई नीड लॉट ऑफ डेटा एक्चुअली. तो एक एक्यूरेसी तो आप बड़े आराम से अटेन कर लेते हैं. किसी भी इंडिया के वर्ल्ड के किसी भी एआई को बोलोगे ना तो 90% एक्यूरेसी सबकी है. पर लड़ाई जो है ना 90 से 100 के बीच की है. वो 95 क्रॉस करते करते आधी आपके पास 100 कंपनी है तो फिर 5 बचती है. ये है लड़ाई एआई की. और एक्चुअली आप रिप्लेस कर रहे हो ह्यूमन को. एआई क्या कर रहा है इंसान को? तो वहाँ पे एक आदमी जो चौकीदार बैठ के देखता था कैमरा या जो एनालिसिस पहले एक डेटा एनालिस्ट करता था, आप उसको रिप्लेस कर रहे हो. तो योर एक्यूरेसी हैज टू बी नियर बाई 95 एंड अबव 100 अराउंड 100%, राइट?
So there, of course, you need more and more data to fit. So that we basically, over the time, we basically collect from the company. We deploy this AI on their server. हम ये भी नहीं कहते कि यार हमारे पे ले जाओ. We want to also make it more GDPR compliant company, and we are already doing that. Apart from that, we never basically build Jarvis on our server. But most of the companies are doing in this domain. जो बाकी वीडियो एनालिटिक्स है वो अपने सर्वर पे ले आते हैं, वहाँ प्रोसेस. हम कहते हैं नहीं, आप अगर मेरे क्लाइंट हो, हम आप पे डिप्लॉय करेंगे, आपके सर्वर या आपके डेटा सेंटर पे करेंगे डिप्लॉय, और आपके डेटा के लिए फाइन ट्यून करेंगे. So that is also one of the, you can say, the USP we have. We are not making it a pure complete SaaS की कहीं डेटा की प्राइवेसी को लेके कोई वो रहे. आप अपने पे सर्वर पे डिप्लॉय करा लो, वहाँ डिप्लॉय करेंगे, कोई वो नहीं. और उससे आपका कॉस्ट भी कम होगा. आपने क्लाउड ले रखा है ऑलरेडी, आप वहाँ पे. अच्छा, कोविड के बाद थोड़ा क्लाउड को लेके एडॉप्टेबिलिटी भी बढ़ गई. There was like in the previous time we don't had that kind of acceptability, and people also started accepting somehow AI as well, because people seen a lot of mask detection or cleaning hygiene detection. A lot of tech came there, right? So people started feeling कि नहीं ऐसा टेक होते हैं. और लोग बड़े खाली थे कोविड टाइम में, अगर आपको पता हो तो. लोग ना, हम लोग दिन में रोज 50 कॉल करते थे. पहले हमें ये कॉल 5 मिलती थी, या 5 बार किसी से मीटिंग मिल जाए दिन में, 2 मिल जाए, बड़ी बात है. हमें याद है जब कोविड चला तो वी वर गेटिंग लाइक 50 to 60 कॉल विद CIOs एवरी डे. मतलब हम आधे घंटे की कॉल रखते थे. लाइक हम रात के 12-1 बजे तक कॉल ही कर रहे हैं, राइट? So people were so much like wanted to know, and that was the time we educated lot of our customers. उसके बाद फिर ये हाइजीन फैक्टरी बन गया. हर किसी को कैमरा पे AI चाहिए. This is good actually, and कैमरा जैसे is a huge place. मतलब पता नहीं कितना बड़ा मार्केट है यार. मतलब ये सोचो, हम बिहार इलेक्शन का EVM मॉनिटरिंग करते हैं काउंटिंग टाइम. तो होता ये, हम याद होगा, आपने भी सुना होगा, जब भी कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जीतती है तो बोलती है जो दूसरी पार्टी है उसने EVM हैक कर लिया है, राइट? तो बिहार इलेक्शन कमीशन सेट किया, इस बार हम जब काउंटिंग होगी तो हम ऊपर एक कैमरा लाके हम भी देखेंगे कि काउंटिंग ठीक से हो रही है. हमने कहा एक लेयर और करते हैं सर, हम ना काउंटिंग को कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल फॉर्म में, एंड विल आल्सो से कि विच कैंडिडेट गेट व्हाट, हाउ मेनी वोट्स. तो एक तो मैनुअल एंट्री कर रहे हैं और एक आपका डिजिटल हो रहा है. आप दोनों से मैप करना जहाँ पे भी वो होगा. ऐसा रेवोल्यूशन था वो. बिहार पंचायत इलेक्शन 2020. 5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था तो टोटल 80,000 पिटीशन फाइल हुई थी इलेक्शन के अगेंस्ट. मतलब ये काउंटिंग नहीं हुई, यहाँ से यहाँ मारपीट हो गई सब. इस बार सिर्फ 400 पिटीशन फाइल हुई. वाओ. तो दिस इज समथिंग, यू क्रिएट एन इम्पैक्ट कि यार इंडिया, मैंने बोला ना, इंडिया इज सो, मतलब ऐसी जगह है यार कि मतलब अगर आप कुछ करना चाहो ना, इनोवेशन, हर जगह प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ. और AI कुड बी अ बिग थिंग. मतलब कई इन्वेस्टर हमें, इसीलिए कई इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट भी नहीं किया हमें, कि भाई तुम्हारा डोमेन क्या है. क्योंकि इन्वेस्टर को चाहिए वो एक्सेल शीट में डेटा बन जाए, वो इंटरपोलेशन, पूरा एक्सट्रापोलेशन बन जाए कि आज आपने 10 किया तो 5-15 करोगे, प्रोजेक्शन 50 की हो जाएगी, 20 का मल्टीपल करेंगे, 1000 की वैल्यूएशन होगी आज इस वैल्यू. तो उनको वो चाहिए. प्रॉब्लम क्या है, जो मार्केट है ना कैमरा का, इट इज नॉट कैमरा. क्या है, आपके घर में आग लगेगी तो आपको भी तो उतनी परेशानी है, तो आप भी करोगे. और एक मैन्युफैक्चरिंग में लगी, वो भी उसी इंटेंसिटी से करेगा. तो यार मैं अपने आप को क्यों रोकूं कि नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग का ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. यार अभी तो है जेनरिक प्रॉब्लम, तो जेनरिक तरीके से सॉल्व करेंगे. देखेंगे स्पेशलाइजेशन कब करना है. अभी मार्केट नहीं है स्पेशलाइजेशन का. यूट्यूब है. यूट्यूब ये थोड़ी ना बोलेगा कि यार हम जो है सिर्फ स्टार्टअप की स्टोरी वाला वीडियो ही डालेंगे. यूट्यूब स्टार्ट ही वैसे ही हुआ था. हो सकता है कि आगे वाले कुछ ऐसे वीडियो प्लेयर्स आए जो कहेंगे हम सिर्फ स्टार्टअप की स्टोरी चलाते हैं, राइट? तो अभी जो टाइम है, इट इज अ वेरी जेनरिक टाइम. इट इज अ टाइम वेयर जनरलाइजेशन इज नीडेड, नॉट स्पेशल. तो वी वेयर विद दैट थॉट प्रोसेस, वी प्रूवन लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग. तो भी मजा आता है यार कि नहीं, पैसे भी कमा रहे हैं ये तो यार, और कर भी रहे हैं, ग्रो भी हो रहे हैं. तो यार किस टाइप के यूज केसेस देखे आपने? मतलब आई गॉट द पुलिस वाला एंगल, आई गॉट द गवर्नमेंट, मतलब EVM वाला एंगल, आई आल्सो अंडरस्टैंड द रिटेल वाला एंगल. बट नंबर 1, अभी कौन से यूज केसेस आप केटर कर रहे हो? नंबर 2, what all are the other future possibilities which you see कि यार ये मार्केट, मतलब ये वाला प्रॉब्लम जो है बहुत लोगों को, या फिर ये प्रॉब्लम इन itself is something which is big enough which we want to touch upon. Right. So basically, when I talk about problem statement, तो broadly we can divide. CCTV पर हम लगाते हैं 2 चीजों में. एक होता है लॉस प्रिवेंशन, वो किसी के लिए कॉमन है, वो गवर्नमेंट आप में, तो उसको मैं ब्रॉडली बोलता हूँ लॉस प्रिवेंशन. दूसरा जो डोमेन है वो है रेवेन्यू जनरेशन. ये नई बात बोल रहा हूँ मैं कि CCTV से रेवेन्यू जनरेशन, राइट?
हमने दोनों को डिवाइड किया अलग अलग डोमेन पे। तो जो लॉस प्रिवेंशन है वो जनरली गवर्नमेंट है, पुलिस फोर्सेज हैं, या आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे कुछ चोरी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, या आप जो भी कर रहे हो। Revenue generation is mostly through the retail sector or something which want to know football and all. I'll go to the retailer now. जो लॉस प्रिवेंशन सेक्टर है उसको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल चाहिए, वो चाहिए सिक्योरिटी और सेफ्टी। तो सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी है लेट्स से कि वायलेंस, सिक्योरिटी है लेट्स से इंट्रूजन, सिक्योरिटी है सडन क्राउड इंक्रीज, सिक्योरिटी है किसी ने लेफ्ट बैगेज आइडेंटिफाई हुआ। तो ये ब्रॉड यूज केसेस हैं। सेफ्टी में फायर डिटेक्शन है, या क्लीनिंग हाइजीन है, मतलब झाड़ू ही नहीं लगा दिन में, या लोग फॉर एग्जांपल फूड टेक में जब हम काम कर रहे हैं किचन लाइक मिनी, तो उनका हाथ धो के खाना नहीं बना रहे हैं, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ओन हाइजीन। उसके लिए उनकी ऑडिटिंग होती है, राइट। वो हफ्ते हफ्ते में ऑडिटिंग करते हैं, महीने महीने का उनके 10 लाख 15 लाख खर्च होते हैं सिर्फ 10 किचन या 10 फूड टेक को ये आइडेंटिफाई करने में कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेयर वी आर डूइंग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फॉर दीज डोमेन्स। दूसरा आया जो रिटेल है। रिटेल का तो लड़ाई ई कॉमर्स से है। अरे ई कॉमर्स को क्या डेटा नहीं है? ई कॉमर्स अभी आपने मोबाइल फोन में सोच लिया मन में ना यार कि मुझे मॉरिशस जाना है, तो अगले दिन में ऐड आ जाएगा आपको कि मॉरिशस जाना है, राइट। यू हैव सीन दैट, लाइक वी थिंक समथिंग एंड यू गेट एन ऐड। सो दे हैव ऑल द लग्जरी ऑफ द डेटा। उधर रिटेल वाला बेचारा एक ही डेटा लेके बैठा हुआ कि आज मैंने 50 प्रोडक्ट बेच दी, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता क्या हुआ, राइट। दे रन अ मार्केटिंग कैंपेन, दे डोंट इवन नो कि पीपल केम टू देयर स्टोर और नॉट, राइट। So this is something where your camera can work, and that is the domain which is like scaling very fast for us. I mean, दो हमने start government ये सब किया, पैसा भी वहाँ से बहुत मिलता है, but retail is something which is growing very fast. Now people are now understanding कि यार ये चीज तो सही में important है। यार क्यू, let's say queue management, I'm simple term, queue management मतलब कितने लोग क्यू में लगे रहते हैं एक टाइम पे। जो क्यू लॉन्ग होती है उस पर चर्न बहुत होता है। आप जैसे जाओगे ज़ारा या H&M में, क्यू बहुत लंबी, बीइंग अ मेल यार, हम लोग टाइम पे खड़े देखा क्यू बहुत बड़ी छोड़ के चले गए। लड़कियां तो फिर भी थोड़ा वेट कर लेती है, ठीक है, बड़े मेहनत से ट्राई होकर कुछ सही हुआ है, हम छोड़ के चले जाते हैं। कैन यू एनालाइज कि यार क्या एज जो है बहुत तेज क्यू छोड़ता है? कैन यू एनालाइज कि फीमेल ज्यादा क्यू चर्न करती है या मेल करता है, या किस टाइम पे ज्यादा चर्न होता है, राइट। This is an insight which everyone want to have, and then only you can take a marketing decision or any sales decision, and this is what we are providing, and people are like super happy कि भाई ये तो मतलब चीज हमने कभी सोचा ही नहीं था। और ये टेक बहुत सिंपल है। क्यू मैनेजमेंट इज क्यू मैनेजमेंट, ठीक है, क्यू तो ठीक है सभी कर रहे हो, कुछ कर ही रहे होंगे जो एआई में कर, बट वो इंसाइट निकालना है, दैट इज सुपर पावरफुल फॉर मेनी ऑफ द कंपनीज वी आर वर्किंग विद। तो रिटेल इज वन ऑफ द ग्रोन थिंग। गवर्नमेंट ठीक है बाई नेचर ऐसा है कि सिक्योरिटी उनको मॉनिटर करना है, सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटीज आ रही है, सेफ सिटी आ रही है, पुलिसिंग है। इंडिया में हर आर 300 मर्डर होते हैं, 300 आईपीसी क्राइम्स होते हैं, 100 मर्डर्स होते हैं, तो वो तो डोमेन है ही है, मतलब कि जिसको आप क्रैक करोगे और तो हो ही जाएगा। पर ये जो नया डोमेन है जिसको आपने एक्सप्लोर कर दिया है कि नहीं ये मार्केट है, उसमें कुछ नहीं, आपको कोई हार्डवेयर भी नहीं लगाना, जो कैमरा लगा हुआ बस वहाँ इंटरनेट लगा दो, बस डन। तो यार इतना तो इंटरनेट तो आज का टाइम में इंडिया में कुछ हो ना हो इंटरनेट तो है। तो अतुल ये क्या plug and play है? This is a plug and play kind of a system which just plugs into your हाँ, so you come to Jarvis, copy your IP address of your camera and start using it. That's all. Oh wow. So थोड़ा सा Jarvis के बारे में बता दो यार, हमने 3-4 बार सुन लिया, but है क्या? How what exactly is it and how exactly does it work? तो बेसिकली क्या जारविस की स्टोरी बताता हूँ यार। तो जारविस ठीक है, हम ऐसा हुआ कि वी वर्किंग विद पुलिस, तो पुलिस ने बोला यार कि हमें जेल में भी मॉनिटरिंग करनी है, जेल में बहुत फाइट होती है, हमें पता ही नहीं, जेल एक ऐसा इकोसिस्टम है, मूवीज में भी आपने देखा होगा, जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ नहीं पता, इवन जेलर को भी नहीं पता, जो जेलर भी एक तीन दीवार छोड़ के बैठता है, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं जेल, 2 दीवार 1 दीवार, तो लास्ट में सारे कैदी रहते हैं, वो हमें भी नहीं पता था। हम भी जब जेल में गए तो हमें पता चला देखने के लिए कि भाई एनालिसिस बनाना है कुछ, तो कैमराज विद देयर, राइट। तो पर्सन हु इज अ हेड, ही माइट बी सिटिंग सम स्टेट पार्ट ऑन समथिंग, तो ही सेड कि यार मुझे वीडियो एनालिटिक्स चाहिए जेल। आपको नहीं पता कि यार वीडियो एनालिटिक्स एग्जिस्ट करती है, आपको ये पता कि एआई से तो सॉल्व हो जाएगा ये, आप वीडियो एनालिटिक्स या फैशनेबल टर्म्स नहीं जानते थे जो नॉर्मल दुनिया जानती है। तो हमने कहा ठीक है बिल्ड करते, तो जब बिल्ड कर रहे थे तो हमने जारविस का नाम ऐसे सोचा कि जेल एआई रिसर्च, फिर हमने कहा यार जेल लिखने से हो जाएगा कि जेल के लिए बना है, और हमारा डोमेन तो हमें रिटेल में भी करना है, हमने कहा इसका नाम रखते हैं ज्वाइंट एआई रिसर्च। तो हमने हमारा जारविस का जो डेफिनेशन है से ज्वाइंट एआई रिसर्च फॉर विजुअल इंस्टेंसेस एंड स्ट्रीम, तो ये हमारा जारविस का फुल वो था। और उसके बाद फिर ऑफकोर्स एज आई सेड कि इन्वेस्टर तो हमें छूने से भी डरते थे, तो फिर हमें यार गवर्नमेंट ऐसा करना था कि गवर्नमेंट बनवाए प्रोडक्ट, हमसे पैसा उनसे मिल ही जाएगा, और फिर हम इसको प्रोडक्ट बनाते टाइम फिर हमें प्रोडक्ट भी बन जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, फिर आगे आप वो भी कर जाओगे।
तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली करना पड़ा यार, हमारे पास वो लग्जरी नहीं था कि आपके पास $1 million $100 million पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट में और आप जो मन कर रहा है वो कर रहे हो। तो in that way we work with government, we generated revenue because we're solving a very impactful problem which no one want to solve। जेल में कौन वीडियो टैक्स करेगा, उसको बाहर ही वेबसाइट बनाने के 10 करोड़ मिलना है, तो वो जेल में चलो तुम लोग कर लो, ऐसा था। कोई नहीं आता था टेंडर में बिडी करने नहीं आता था। तो then we did it and I think we actually became very successful in that way for the government sectors। And then the product was ready. Of course, you're solving a critical problem, so you made your product also very you can say robust, and you are solving जेल में क्या है ना कि इंटरनेट भी नहीं मिलता क्योंकि जैमर्स लगे होते हैं। तो आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो यार, मिनिमलिस्टिक कैसे करके आप मतलब मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वो हमारे लिए यार कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रहा। और वो जो वहाँ पे काम कर लिए, तो यार मैं यार बनारस में किसी रिटेल इंडस्ट्री का अगर चेन है तो उसको भी हम ऑनलाइन कर लेते हैं इजिली विदाउट गोइंग देयर। अभी हम टोटल 45,000 कैमरास प्रोसेस कर रहे हैं रियल टाइम में। करीब 25 लाख अलर्ट हमारे आते हैं हर मतलब ये बोलो कि दिन में, इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ वी आर ग्रोइंग यार, एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड द टेक्नोलॉजी। तो आई बिलीव कि व्हेन थिंग्स आर गोइंग द वे इट शुड बी गो इन अ वे कि मतलब आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे वो आप देख रहे हो सॉल्व होते हो, और कस्टमर आर हैप्पी, पीपल आर साइनिंग अ डील फॉर 3 years। हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट I'll announce soon, largest sector in the this retail part saw close 3-year deal with us। हम सॉल्व कर रहे हैं सऊदी अरबिया के एक ऑयल इंडस्ट्री को, जहाँ पे हमने Hikvision जैसी कंपनी और हनीवेल जैसी कंपनी से हमने फाइट किया कि उनसे बेटर कैसे कर सकते हो। तो this is something which we are I mean we want to create and we see कि यार ये बन सकता है इंडिया में, और इंडिया में भी टेक बनता है, सिर्फ हम कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट नहीं है। नहीं एब्सोल्युटली यार, इंडिया में ही टेक बनता है, बाकी लोग तो यहाँ से लोगों ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से निकल जाती है, हमें बनता तो यहीं पे है। बट अतुल एक बात बताओ, गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा मिलता है या फिर कंपनी से? यार हमारा 60% रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर से आता है, 40% गवर्नमेंट से आता है। शुरू में ऐसा था कि 70% गवर्नमेंट से आता था, 30% प्राइवेट सेक्टर से आता था, क्योंकि हमारा भी इंटेंशन भी वही था कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा पैसा देती थी, और बड़ा पैसा देती थी तो यार प्रोडक्ट बनाना था, लोगों को सैलरी में रखना था। फाइट सैलरी वार भी चल रहा था बीच में, आपको याद होगा 2021 में आप 3 लाख दे रहे हो, सामने वाला 6 लाख दे रहा हो, कोई 12 लाख पे जा रहा है। अभी तो मार्केट जाके फिर स्टेबल हुआ है, राइट। तो यार पैसे तो चाहिए होंगे, क्योंकि देशभक्ति वक्ति किसी को समझ नहीं आती तो सबको सैलरी चाहिए होता है। तो वो था, तो हमने सोचा कि गवर्नमेंट लेट्स डू दैट। इट इज बिकॉज दिस इज फॉर अस द इन्वेस्टर, यू कैन से द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स विद इन्वेस्टमेंट फॉर अस। उससे पैसा बचा के फिर हम प्राइवेट सेक्टर के यूज केसेस बनाते गए, मार्केटिंग सेल्स टीम लगाई। अगर आज के टाइम में बात करोगे तो मेरे कंपनी में सिर्फ 3% जो है, जो टीम एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट पे काम करती है, जनरेटिंग 40% ऑफ द रेवेन्यू। 3% लोग, बाकी की जनता पूरी प्राइवेट सेक्टर पे। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में मार्केट बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट मतलब मार्केट का स्केल बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा बहुत बड़ा है। यार 10 स्मार्ट सिटी आती हैं 10,000 करोड़, 700 करोड़ की, 800 करोड़ की एक स्मार्ट सिटी होती है। बैंगलोर स्मार्ट सिटी 700 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए की। फंडिंग से कितना रेज कर लोगे यार तो और इक्विटी भी डाइल्यूट कर रहे हो। और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अब आपका कॉम्पिटिटर कौन है इस फील्ड में? इस फील्ड में कॉम्पिटिटर आपका बहुत बड़े बड़े कैमरा मेकर्स और वो जो कि $1 billion $1 trillion कंपनीज हैं यार। तुमसे आप फंडिंग से तो नहीं जीत पाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं कस्टमर को टारगेट करना पड़ेगा, कस्टमर पे करे आपको। तो वो चीज है, और ये ऐसा चीज है कि इसमें आप ऐसा नहीं कि आदत दे सकते हो। कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट में आपको फ्री में खूब दूध दिया तो आप दूध मेरे यहाँ से खरीदो, ठीक है, आपकी आदत बन गई ना वही से खरीदने की। इसमें तो ऐसा है कि टेक में यार कि आपको एक्यूरेसी चाहिए, वो नहीं है तो आपको पैसा से नहीं, आप डिस्काउंट पे नहीं मार्केट विन कर पाओगे। तो फंडिंग ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट था कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो टेक बनाए हम, वो काफी पावरफुल बनाए। एंड यही एडवांटेज था हम तीनों में कि हम तीनों एआई इंजीनियरिंग सब बैकग्राउंड से थे, 8-9 साल का एक्सपीरियंस था और अच्छी जगह पे काम किया था, तो पता था कि क्या बनाना है और लोगों को क्या चाहिए। बेसिकली आपका जो मार्केट में समझ गया, आपने प्रोडक्ट बनाया, एआई किया, एंड लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या है कि यू मस्ट बी हैविंग स्पेसिफिक डिटेल्स ना, कि माय एआई कैन वर्क ओनली विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैमरा आल्सो, और मे बी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपैटिबिलिटी है, कितना, what is the quality of the camera? So how do you like basically, do you tell कि we will provide you, or you tell them you get this all these things, then only we will provide you the AI and stuff? नहीं, ये हमने एक बड़ा सही करा ना। तो हाय चंद्रकांत,
तो हमने क्या किया कि जो हमारा एक्चुअली इंडिया ऐसा है ना यार कि कोई किसी को बोलोगे ना ये तो कैमरा ऐसे कर दे वैसे कर दे, ये क्वालिटी लगा दे और फिर हम लगाएंगे यही, तो यार भैया आप जाओ, हम आपसे नहीं ले पाएंगे, इतना इतना हम आपका कंडीशन मीट नहीं कर सकते. So we decided कि why not build this thing at our site. For example, if I want to do analytics at your place and I will ask कि यार मुझे static IP address चाहिए to access your camera, you might say कि भाई हम इतना सब नहीं कर पाएंगे, हम लोग बड़े because you have not that very much tech educated market. तो ऐसे में what we did, we created a technology. Just install your app in local computer and it will access the camera for you. This is how we build. Of course, you have to put the password and IP and everything for you, whatever the VMS or VA you have. तो पहला तो ये था कि स्केलेबिलिटी के लिए एक ऐसा टेक हो जिसको एकदम प्लग एंड प्ले हो, मतलब अगर मैं नहीं भी रहा हूँ तो भी वो डाउनलोड करे, इंस्टॉल करे, दैट इज एंड दे स्टार्ट यूजिंग इट. दैट इज वन कि ये पहले तो एक्सेस कर लें. फिर बात है क्वालिटी पे कैमरा की. अब कैमरा क्वालिटी दो तरीके से होती है. तो कैमरा की हार्डवेयर क्वालिटी, लेंस खराब है. दूसरा ये कि जो आपका बैंडविड्थ है वो बेकार है, वो मतलब स्ट्रीमिंग की स्पीड ही खराब है तो स्ट्रीमिंग भी खराब जाएगी. तो व्हाट वी डिड, वी आल्सो क्रिएटेड इमेज एनहांसमेंट टेक. इमेज एनहांसमेंट का मतलब कि कोई ब्लरी फोटोग्राफ को कैसे हाई ग्रेड कर सकते हैं एआई साइड में. तो आप तो ब्लरी मुझे भेज दो मेरे सर्वर पे और अपने क्लाउड में जहाँ पे भी ज्यादा डिप्लॉयड है, देन इट कन्वर्ट दैट फ्रेम्स टू अ हाई डेफिनिशन फ्रेम्स एंड देन डू द प्रेडिक्शन. So prediction is of two types. One is action or activity related one. Second is a more like a classification वाला part. मतलब नंबर क्या है, गाड़ी क्या है, पर्सन कौन है. तो जो क्लासिफिकेशन वाला है उसमें थोड़ा क्वालिटी हाई चाहिए होती है, एक्टिविटी वाला पार्ट में नहीं चाहिए होती. झाड़ू लग रहा है तो लग ही रहा है ना यार, 10 फ्रेम में आप झाड़ू लगाते ही दिखोगे तो आप तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे कि यार हाँ यार झाड़ू लग रहा है. मारपीट हो रही तो हो रही है, मतलब थप्पड़ मार के थोड़ी भाग जाएगा कोई, और वैसे अलर्ट को आपको जानना ही क्यों है. तो वो जो चीज़ थी वो फिर हमने प्ले किया. ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग डन इन दैट वे, द रिसर्च साइड. बट यार यही है, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, इंडिया कंज्यूमर को सॉल्व करना है कि यार उससे कुछ ज्यादा ना मांगो. उससे कुछ ज्यादा मांग दिए तो देन इट इज नॉट डन. Got it. So Atul, your accuracy also varies for someone basically as you're not asking कि यार मेरे को ये दो या ये दो, तो obviously accuracy vary करेगी ना, किसका अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा. हम उनको यार हम उनको ये कर देते हैं, हाँ accuracy vary करती है. हम उनको पहले दिन बता देते हैं कि देखो सर ये आपका कैमरा, मैं आपसे पायलट कर लेता हूँ 2 दिन. हम किसी को रॉन्ग प्रॉमिस नहीं करते. कस्टमर के साथ ये होता है ना कि कस्टमर बहुत हाई, एआई क्या है ना यार, बहुत जादूगर वाली चीज है. लोगों को लगता है कि जादू होगा यहाँ पे. तो हम उनका सेट करने के लिए हम कहते हैं कि काम करो, 2-3 दिन आप चला लो. हमारा परसेप्शन ये कि ये एक्यूरेसी है कि आप उससे खुश हो तो कर लो, अदरवाइज थोड़ा बहुत रीपोजिशनिंग आपको करनी पड़ सकती है. और आपको अच्छा और चाहिए, कैमरा मत खरीदना, बस पोजिशनिंग ठीक करना. अब मेरे सर पे लगा के बोलोगे यार फेशियल एक्सप्रेशन कर लो, तो नहीं कर पाऊंगा यार. तो उसको भी समझ आ जाता है, तो फिर वो मोटिवेटेड होता है कि हाँ यार इतनी 80%, 85 तो अभी दे दिया इसने, मैं ठीक करूंगा तो और आ जाए. So that is what we did, and this is also one of the successful approach we actually identified in this market. And the good part why we are able to do a very fast pilot, because we are a plug and play. मेरा competitor तो बेचारा डब्बा लेके जाता है, सर्वर लगाएगा, वो करेगा, ये करेगा, उतने देर में तो मैं सिर्फ 10 स्टोर का रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा कि आपकी एक्टिविटी है. So that's something which is like we build something on tech. We are winning the market based on tech, not based on, you can say, the operations and all. Operations. So you don't plan to enter into the operations anytime because maybe अगर आप किसी सेक्टर में enter करते हो, right, you need a person in tech also, like someone physically helping the people out. Maybe if you want to scale into, maybe you want to put your own camera in the future. यार हम कैमरास ही बना रहे हैं, हमारे स्पेशल जो भी है. Just thoughts. हार्डवेयर यार बेसिकली क्या है ना, हार्डवेयर मार्केट करना नहीं है. हम एक्चुअली एंड्रॉइड बनना चाहते हैं. मतलब गंदा एग्जांपल है बट फिर भी हम बनना चाहते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब पे चले. यार तुम लेट्स से सीपी प्लस ला रहे हो या हिटविजन ला रहे हो या हनीवेल ला रहे हो, सब पे चलेगा, चलता है आज के डेट में ऐसे ही. तो हम एक जो भी कैमरा मतलब स्टैंडर्ड होता है, इस पे आरटीएसपी बनती है, आरटीएसपी से आईपी एड्रेस नोट हो सकता है, वो मेरे लिए यूजफुल है. एंड वी वांट टू गो इन दैट वे बिकॉज दैट इज अ मार्केट वी वांट टू क्रैक. वी डोंट वांट टू क्रिएट अ हार्डवेयर तो फिर वही होगा, ऑपरेशन हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर आप उसी पे फोकस करो. गूगल वो नहीं करता ना, मतलब गूगल ठीक है ट्राई किया उसने मोबाइल फोन में बट नॉट सक्सेसफुल. इफ यू वांट टू बिकम एप्पल यू हैव टू बिकम ऑन अ फर्स्ट डे. वो पहले दिन ही मुझे वो कैमरा लॉन्च करना था, फिर जार्विस के साथ, जार्विस का कैमरा ही होना चाहिए था वो. अब नहीं करना है वो, अब वो हो चुका, क्लियर हो गया, आपने डीएनए बना दिया कंपनी का, तो इतना जल्दी चेंज नहीं करना चाहोगे. Got it. Good. Thanks Atul. एक है अराउंड द टीम, तभी मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ डीप टेक कंपनी, राइट? तो आपका ओवरऑल टीम स्ट्रक्चर कैसा है अभी एंड हाउ एग्जैक्टली डज द ओवरऑल दिस थिंग लुक लाइक? यार हम लोग अभी 75 के आसपास लोग हैं. 70% लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मतलब वो कोडिंग, क्यूए, टेस्टिंग, रिसर्च इसमें है. 30% टीम जो है, 30 में 20 मान लो इज बेसिकली बिजनेस टीम एंड 10 इज बेसिकली द अदर ऑपरेशंस एंड ऑल. तो जो 20 भी इसलिए थोड़ा
कम है नंबर, बिकॉज बिजनेस पे लोग ज्यादा टीम रखते हैं इंडिया में या कहीं भी देखोगे ना, तो मुझे भी नहीं पता था, MBA नहीं किया मैंने, तो मुझे नहीं पता था एक्चुअली बिजनेस ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्ट बाद में बनता रहेगा। तो बेसिकली वो चीज अब हम ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन गया तो नाउ वी आर ग्रोइंग द मोर द बिजनेस टीम, बिकॉज वी अंडरस्टूड कि यार एक्चुअली MBA वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम दो बीटेक करके या रिसर्च करके आते हैं, हमें लगता है यार ये तो बस टाइम बर्बाद करते हैं, बना लेंगे तो बेच भी लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। So there we are growing. We are adding more business and marketing and sales team for channel partnership, direct sales, the marketing team for international things. So we still are growing, and currently we have 75 people in the company, and we are in Gurgaon. Got it. And we have few people in Bangalore as well. नहीं बहुत सही यार। अच्छा सेकंड, मुझे ये समझना था यार कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है आप जिस इकोसिस्टम में हो, एक तो इंडिया का और दूसरा ग्लोबल का। ऑफ कोर्स मार्केट अपॉर्चुनिटी आई थिंक यूजुअली ऐसे इकोसिस्टम में ना लेगेसी कंपनी ज्यादा होती हैं, राइट? तो क्या है एग्जैक्टली वही एक्चुअली देखो उसमें क्या है कि उसी को क्रैक करना था हमें, हमने यही किया भी। हमने क्या ट्रेडिशनल कंपनी का वही है ना कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं Hikvision जो कैमरा भी बनाता है, सर्वर भी बनाता है, एडिटिंग बनाता है। नेमिंग देम आई डोंट नो वेदर शुड नो और डोंट, चलो इतने बड़े हैं नहीं कि तब परेशान करेगा कोई, आई एम नॉट $1 बिलियन। तो दूसरा है CP Plus टाइप की कंपनीज है, NEC टाइप कंपनी, तो दे बिल्ड देयर ओन हार्डवेयर आल्सो, सो दे आर हार्डवेयर एंड देन सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी। लाइक यू बाय अ DVR तो यू आल्सो गेट अ मोशन डिटेक्टर इन दैट, maybe it's not useful कि चिड़िया भी उड़ेगी तो अलर्ट आएगा। तो this is something we want to crack। यार हमारा जो है ना वो सॉफ्टवेयर है, तुम अभी भी हार्डवेयर रखे हो हनीवेल का, तो यू कैन, हनीवेल इज आवर पार्टनर दो, तो आप जो है उनके साथ उनका कैमरा यूज करके अपना सॉफ्टवेयर डाल दो ऊपर। ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर जस्ट टेकिंग स्ट्रीम, तो स्ट्रीम दे ही रहा है, API से ले लिया आपने, IP एड्रेस से कॉपी किया, सर्वर पे लाए, कस्टमर केयर वहाँ प्रोसेस कर रहे हो जारवेस पे। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो हमारा है वो आपने सही कहा, दैट इज द ट्रेडिशनल कंपनीज हु आर एक्चुअली द मेकर ऑफ हार्डवेयर कैमरा, तो उनका ब्रेड एंड बटर सॉफ्टवेयर नहीं है, AI नहीं, उनका ब्रेड बटर कैमरा का हार्डवेयर, उसकी जो भी एक्यूरेसी, वो सारी चीजें हैं। तो वो एडवांटेज को हमने थोड़ा अलग किया, हमने सेग्रीगेट किया कि भाई सॉफ्टवेयर इज द ब्रेन, हार्डवेयर ठीक है आप आज तक वो करते आए, बट दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज हाउ वी आर विनिंग। दूसरा हमने ये कहा कि भाई हम पायलट भी करेंगे, आप पहले टेस्ट करो फिर हम पे, मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वो हमने किया, तो थोड़ा वो भी एक चीज हुआ कि एक नेटवर्क इफेक्ट बना, लोग कहे कि यार वो स्टैक्यू है वो अच्छा करता है। अभी हमारे पास तो हर महीने 4-5 बड़े डील तो सिर्फ रिकमेंडेशन पे आते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास यार इतना पैसा नहीं है हम टीवी पे ऐड कर पाए, तो जितना है उतने से हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। वी रिप्लेस दोस बिग नेम्स, लाइक नेम्ड दे आर लाइक ट्रिलियन डॉलर कंपनीज यार, हम वायरस हैं उनके सामने। तो बट we are just fighting, viruses are also very dangerous, we have seen। नहीं एब्सोल्युटली यार, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है यार इन जनरल अतुल, एंड वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ योर टेक्नोलॉजी। मतलब मुझे तो वही लगता है कि यार देखो अगर आपको आप मतलब इट्स अबाउट फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम ना, आपने वो प्रॉब्लम एक बार सही से फिगर आउट कर लिया तो उसके बाद तो I think there are the floodgates open by itself. Right. तो यही यार, I think I मतलब anything else which you want to touch upon अतुल, मतलब I'm happy to do that। मेरे तरफ से तो I think काफी सारी चीजें हैं। साहिल मैंने सारी चीजें मैंने सोहेल मैंने कवर कर ली है, बट कुछ ज्यादा बचा नहीं। मैंने तो अपने मतलब पहली बार बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो मैंने पहले कभी भी किसी इंटरव्यू में रिवील नहीं भी किया होगा, मतलब जारविस का नाम कैसे रखा, ये सारी चीजें। बट आपको दिस इज ऑल द स्टोरीज यार, वी स्टिल आर बिल्डिंग एंड लव टू बिल्ड। सब नए लड़के हैं, फ्रेशर टाइप के लड़के हैं। मुझे एक बात बताओ, आप लोग सारे फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हो राइट? हाँ यार, हम लोग सब पहले वाले हैं, हमने पहले कभी नहीं देखा दुनिया में कैसे बनाई जाती चीजें। सो क्या मतलब आपका जो बिजनेस वाले साइड का जो जर्नी है, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझना चाहूंगा कि बिकॉज यू पीपल डिडंट हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड राइट, एंड यू पीपल स्टार्टेड ऑफ विद क्रिएटिंग अ टेक्नोलॉजी एंड देन वेंट आउट टू सेल, एंड यू पीपल आर एकेडमिक्स फर्स्ट and techies first, and then comes the business side. So how has that mentality been for you guys? तो यार क्या होता है ना, जब आप एंटरप्रेन्योर, क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में थोड़ा डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, बिजनेस वाले को पहले से क्लियर होता है कि पैसा बनाना है। तो MBA वाले लोग अच्छा होते हैं और एक्चुअली उनको होना चाहिए, टीम में एक बंदा ऐसा होना चाहिए स्टार्टिंग डेज से, जिसको ये समझ में आए कि इस प्रोडक्ट पे पैसा किससे निकालना है।
तो हमें ना पुलिस बोलती थी ना यार ये क्रिमिनल ऐसे क्राइम करके भगा है, ऐसा पकड़ना है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करते थे, ये सोचने के बाद कि यार इसको पैसा भी मांग सकता है ना इस पे। तो वो जो चीज थी वो लैग करती थी। लेकिन यार दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करते हो तो पैसा आपका बाई प्रोडक्ट बन जाता है लॉन्ग टर्म में। आज हम पैसा बना रहे हैं, हमें फंडिंग की या मार्केट डिसीजन का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। आप बनाते गए हो ऐसा कि यार वो है, अब ये नहीं बन चुका है, मैं भी अगर चला जाऊंगा तो भी चलता रहेगा, राइट। वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पार्ट है वो है कि यार एमबीए का एडवांटेज क्या, बिजनेस का। तो बिजनेस का एडवांटेज ये है कि आप फर्स्ट जैसे क्लियर होते हो कि आपको मार्केट का पूरा फुट प्लान जो भी आपने बनाना है क्या होना है, कैसे आप ग्रो करोगे या क्या आपका पाथ होगा, वो क्लियर होता है। हम लोग ना मतलब जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, हमारा डोमेन भी ऐसा था, बहुत नया था एआई। यार हम बोलते हैं, अभी बोल दूंगा कि चलो जी ओपन जीपीटी पे कोई बिजनेस केस बनाओ, नहीं बनेगा आपसे। हम बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, बना ही नहीं पाओगे। वो ठीक है थोड़ा बहुत जनरेट कर देगा, लेकिन वो एंड कंज्यूमर को समझ नहीं आएगा। तो दिस इज समथिंग विच वी आर ऑल्सो लाइक फेसिंग। तो हमने वही किया धीरे धीरे। हमारा टेक बहुत नया था, तो हमें कस्टमर से थोड़ा टाइम देना पड़ा, कस्टमर के साथ उलझना पड़ा, उसके साथ टाइम देना पड़ा, उसके साथ बैठना पड़ा। पता है ना, जेल का प्रोडक्ट करने के लिए मैं 2 दिन जेल में रहा, जाके डासना जेल गाजियाबाद में, अंडरस्टैंड कि भाई क्या होता है एक्चुअली, चाहिए क्यों। क्योंकि वो चीज आप सॉल्व करते एक्चुअली आप सिक्योरिटी सॉल्व कर रहे हो कैमरा पे, राइट। तो आप समझोगे नहीं तो बनाओगे क्या यार। तो वो चीज है, हम रिटेल करते रहे। तो हम अपने जो कस्टमर आई विल नॉट नेम, हमने उनके हर रिटेल स्टोर को, करीब 22 रिटेल स्टोर पे हमने 5-5 घंटे बैठ के काम की। पता नहीं, जस्ट जैसे आप जाते हो किसी कॉफी शॉप पे तो बैठ के काम करते हो, टू अंडरस्टैंड एक्चुअली होता क्या है, क्या कहाँ का लैक है। तो वो चीज है यार, वो हमने किया। तो वो एक एडवांटेज था बीइंग अ टेक वाला साइड, बट डिसएडवांटेज था बिजनेस वाला साइड कि हम लोग बिजनेस को स्केल जो अभी तक कर जाना चाहिए था। और बीच में कोविड भी थोड़ा हमारा यार, मतलब हम 19 करोड़ का रेवेन्यू किए थे 2019 में, और फिर 20-21 में फिर हम 5 पे आ गए यार। तो अब उसमें हम क्या कर सकते थे, अब उसमें तो जिंदा रहना ही एडवांस, मतलब हमारा सबसे बड़ा वो है कि हम बच गए। तो अभी है कि नाउ अगेन वी आर नाउ एक्चुअली नाउ एट 23 CR काइंड ऑफ रेवेन्यू। वो होपफुली कि सालन तक कुछ बड़ा ही कर जाए। तो वो है यार, वो वही उसी पे लगे हुए हैं, वही कर रहे हैं। बाकी तो ठीक है। एडवांटेजेस जो बोल रहे हो आप बिजनेस में, तो यही है कि आप कीप बिल्डिंग, कीप लिसनिंग टू योर कस्टमर्स। वो चीज आपको जो एडवांटेज देगी ना, वो फंडिंग या कुछ नहीं दे सकता। तो कस्टमर जब आपको बोलेगा ना यू आर द मैन, तो फिर नो वन कैन स्टॉप यू। नहीं, आई थिंक ये बहुत ही ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ना जो स्पेशली प्रोडक्ट बिल्डिंग में रहते हैं, they sometimes miss out on the business element। बहुत लोगों के साथ होता है जिनका बिजनेस बैकग्राउंड, उनको लगता है कि प्रोडक्ट धासु बना लेगा तो अपने आप बिक जाएगा, वैसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं। यू हैव टू बी विद कस्टमर। बना भी रहे हो तो कस्टमर के साथ बनाओ, क्योंकि कस्टमर को पता है कि बिकेगा कि नहीं। आप ये अपने उसमें सो रहे हो कि नहीं मैंने ऐसा कुछ बना दिया और मार्केट इसका वेट कर रहा है, तो वैसा कुछ होता नहीं यार। मार्केट को बहुत बेसिक से देखोगे, 4 का सॉफ्टवेयर जो हो क्या था, एक बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, लाइक दे आर बिलियन। आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग, आई एम एक्चुअली आई लव एंड रिस्पेक्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दैट कंपनी, बट इट्स सॉल्विंग अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, राइट, व्हिच वाज देयर। तो वो तूफान बना के, रॉकेट बना के नहीं होने वाला। आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाओ लेकिन उसके हिसाब से बनाओ, और जब वो करोगे तो फिर रेवेन्यू भी समझ में आएगा कि हाँ पैसा भी कमाना है यार। नहीं, बिल्कुल सही है। हम लोग ये एक्चुअली पॉडकास्ट ऑफलाइन करने वाले थे, बट वी कुडंट। मुझे अभी लग रहा है कि यार ऑफलाइन करना चाहिए था, बिकॉज मेरे ख्याल से आपके साथ बैठ करके ना बहुत सारी चीजों के ऊपर हम डिप कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, होपफुली नेक्स्ट टाइम अराउंड। विद दैट आई थिंक वी कैन कॉल दिस पॉडकास्ट टू अ क्लोज। अतुल, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा यार। मैंने पहली बार आपको, बिकॉज दिस इज अ फ्री फ्लो इंटरव्यू एंड फ्री फ्लो डिस्कशन, तो ऐसे डिस्कशन में आप बातें बताते हो, करते हो, तो इट इज ऑलवेज गुड, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर अ टीवी काइंड ऑफ इंटरव्यू और दोस प्लेसेस, राइट, सो यू हैव अ डेफिनेट टाइम, यू हैव टू टॉक वेरी पॉइंटेड बुलेट पॉइंटर्स में। तो सम टाइम ऑफ कोर्स यू वांट टू टॉक लाइक व्हाट इज देयर इन द मार्केट, मतलब आप क्या ही बताओगे कि मैंने ऐसे स्ट्रगल किया वो। दिस इज समथिंग व्हिच इज गुड एक्चुअली। यू आल्सो वांट टू शेयर कि यार बहुत जो दिखता है ना पोस्टर बॉय की, दैट यू डिड दैट और दैट, पुलिस पकड़ ली, वो कर लिया, ये कर लिया, जो फैंसी लगता है, पर वो बनाने में बहुत मेहनत लगी यार। 8 साल लग गए, और अभी भी मतलब यही लगता है कि अभी 8 साल तो ऐसे ही निकल गए, राइट। तो वही है, पता ही नहीं चलता यार, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम निकलता है। नहीं, अभी भी लगता है अभी तो चालू की थी। अब चल वही है यार, 8 साल लोग बोलते हैं। अब मुझे भी कोई बोलता ना कि हम 2018 में मिले थे, तो मुझे 18 में मिले थे, अच्छा तो फिर लगा 4 साल हो गए 18 को, अच्छा। तो वो वाली बात है यार, 4 साल में वर्ल्ड कप आ गया 2 बार, बताओ। नहीं, सही है। I think with that we just draw this podcast to a close. Thanks a lot, Atul, for taking time out